हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखी है ग्लाइकोलिसिस के बारे में, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 देखें। और उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही आज हम बात करेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस के यील्ड के बारे में। सो टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं वो हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनर्जेटिक्स एंड द यील्ड। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ लैक्टेट फॉर्मेशन, why in anaerobic glycolysis lactate is produced and how it is helped in the NADH regulation. We will discuss in that. It is a very high yield concept. And after that, at the last, we will discuss the difference between pyruvate kinase and glucose 6 phosphodehydrogenase enzyme. ये दोनों एंजाइम काइनेजेस की तरह काम करते हैं। एटीपी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इनका रोल है, लेकिन एक का काम है ईएमपी पाथवे यानी ग्लाइकोलिसिस में, और एक का काम है एचएमपी में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ईएमपी और एचएमपी सुनने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। एंड ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनका क्रिटिकल बेसिक एंजाइम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड सब्सक्राइब टू द इंस्पायरिंग माइंड्स चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के अंडरगो होकर दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, एंड जहां पर हमें दो एटीपी मिलते हैं। लेकिन दिस two ATPs are not the net yield of glycolysis. The total ATP production in the glycolysis are 7. So total ATP which you get in aerobic glycolysis are 7. And how this process occurs, we can just revise the previous video. In the energy consuming part, we use 2 ATPs. And in the energy extracting part, you get the 4 ATP. So आपने इन्वेस्टमेंट करी 2 ATP की, लेकिन आपको बदले में प्रॉफिट मिला 4 का, तो नेट ATP was the 2. लेकिन हम बात कर रहे हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। The aerobic glycolysis, the last product formed from the glucose was the 2 molecules of pyruvate. But in anaerobic glycolysis, the further 11th step in the glycolysis is which in pyruvate is converted into the lactate. There are the 2 final products as molecules of lactate in the anaerobic glycolysis. The enzyme will be the lactate dehydrogenase. It is a EC1. It is an oxidoreductase enzyme. Okay. And what is the main point is, see, when this pyruvate is converted into the lactate, this enzyme lactate dehydrogenase or LDH requires NADH. Means this LDH means lactate dehydrogenase enzyme will not work unless and until NADH उसकी मदद नहीं करता. So NADH will come converted into NAD and will facilitate this reaction to convert this pyruvate into the lactate. This pyruvate into the lactate with the help of enzyme LDH means lactate dehydrogenase. Okay. So but in the aerobic glycolysis, what we discussed, see, this glucose is coming, converting into the 2 pyruvate molecules, giving 2 ATPs in minus, लेकिन 4 ATP in profit. So the net ATP was 2 plus ultimately the 2 NAD was converted into the 2 NADH. And ये NADH आगे चल के ATC में जाएंगे and will further give the 5 ATP. So aerobic glycolysis की हम बात करते हैं। पहले 2 ATP minus 4 ATP profit. So net ATP यहाँ से मिले 2 plus 2 NADH. This NADH will go into ETC and will again give 5 ATP. So aerobic glycolysis में net ATP production हुआ 7 ATP का in the aerobic condition. लेकिन अगर हम बात करें anaerobic condition में, the lactate production, this pyruvate will require the NADH to convert pyruvate into the lactate. So NADH जो हमारे बने वो यहाँ पर खर्च हो गए। इसका मतलब अब वो NADH ETC में नहीं जा पाएंगे और वो 5 ATP नहीं बनेंगे. It means in the anaerobic glycolysis, the net yield for ATP are only 2. These 5 from the NADH are subtracted. So अब बात करते हैं कि ये lactate क्यों बना। एनारोबिक कंडीशन हो सकती है आपकी बॉडी में अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप किसी हाइपोक्सिक कंडीशन में हैं, या फिर आप सपोज किसी एडवेंचरस ट्रिप पे गए हैं और आप किसी टनल्स के अंदर हैं, या फिर आप हाई ऑल्टीट्यूड जगह पर हैं जहाँ पर एनारोबिक कंडीशन कुछ देर के लिए आपकी बॉडी में हो गई। आपकी बॉडी उस ग्लाइकोलिसिस के लास्ट प्रोडक्ट को लैक्टेट तक लेके जाएगी, उस NADH को कन्वर्ट करा के NAD में लाएगी। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमें अपनी बॉडी को एनारोबिक कंडीशन में रखना पड़ा, जबकि हमें पता है दैट एनारोबिक इज ऑलवेज वेस्ट ऑफ एनर्जी। हमें यहाँ पर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ये NADH आगे चल के NAD देंगे, और यही यही NAD आगे चल के वापस हमारा NADH में कन्वर्ट होगा टू फैसिलिटेट दिस एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए एक बार मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट अगेन करनी पड़ी।
सो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल अबाउट अ बिजनेस। आप एक छोटे बिजनेस प्लान की तरह इसको समझ सकते हैं, जहां पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको बहुत अच्छे हाई यील्ड प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जेटिक्स इन एनारोबिक एंड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अगर आप सिर्फ इसको लर्न कर लेते हैं कि एरोबिक में 7 और एनारोबिक में 2, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट नहीं होगा एक अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी इट नीट पीजी और यूएसएमएलई। नीट पीजी का पैटर्न भी जैसे कि आप जानते हैं नेक्स्ट आ गया है और इट हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट, सो इट विल बी क्लिनिकली ओरिएंटेड। सो यू मस्ट नो ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कौन सा एंजाइम कहाँ पर यूज हो रहा है और एनएडीएच की रेगुलेशन में लैक्टेट फॉर्मेशन का क्या रोल है। ओके, so the lactate production has its purpose to regenerate the NAD. Okay, this regulation of NAD in anaerobic condition, see we see that NAD was regenerated through lactate production in anaerobic condition and it was facilitated by lactate formation and ATP were 2. लेकिन सवाल ये उठता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अलावा हमने एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में भी देखा कि NAD in the energy consuming part, see you can see there in the energy extracting part, this NAD is converted into the NADH. हमने बात करी थी इस NAD को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है कहाँ से, इन्वायरमेंट से, और एक ही एंजाइम था जो इन्वायरमेंट का यानी साइटोप्लाज्म का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज कर सकता था एंड दैट वाज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, सो ये NAD कहाँ से आया? अगर हमने बात करी कि एनारोबिक में तो चलो ये NAD कहाँ से आ गया, लैक्टेट प्रोडक्शन से। एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग में ग्लाइकोलिसिस में तो ऑलरेडी NAD पड़ा था, हमने उसमें फॉस्फेट जोड़ा NADH बना लिया। ये NAD कहाँ से आया? दिस NAD माय फ्रेंड्स, दिस रीजनरेशन ऑफ NAD इन द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो हमारी बॉडी में नॉर्मली होती है इज बाय दी शटल्स एंड देयर आर 2 शटल्स इन द ह्यूमन बॉडी। दिस इज द मैलेट शटल एंड अदर इज द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। एंड टू नो मोर अबाउट दी शटल्स आप स्टे ट्यून्ड रहिए एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी शटल्स के बारे में है जो आपको इंस्पायरिंग माइंड्स के चैनल पर ही मिलेगी। ओके, इन शटल्स का बेसिक रोल ये होगा कि जो NAD हमारे पास बना कहाँ पर, NADH यानी कहाँ बन रहा है ये सारे प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म से हमें जाना है इस NADH को लेके ETC में, और ETC कहाँ होता है, अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो हमें एक बैरियर को क्रॉस करना है, ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है और ये अगर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में पड़ा NADH कैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक चला जाए, वो नहीं जा सकता, उसके पैर नहीं है, तो हमें उसको एक गाड़ी में बिठाना है और लेके जाना है, तो उस गाड़ी का नाम है शटल्स। ओके, एंड वी विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है पायरुवेट काइनेज, जो कि एंजाइम है EMP पाथवे का, एंड G6PD मीन्स द ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज जो कि एंजाइम है HMP पाथवे का। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट जानने की जरूरत है, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम से एक बहुत ही फेमस जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, पायरुवेट काइनेज के अंदर हाइंस बॉडीज नहीं बनती। हाइंस बॉडीज आर फैट स्ट्रक्चर्स जो पायरुवेट काइनेज के ब्रेकडाउन से बनती है जब पायरुवेट काइनेज अपना काम करता है। तो पायरुवेट काइनेज की वर्किंग में हाइंस बॉडी का रोल नहीं है, बट दे अपीयर इन द G6PD एंजाइम। नेक्स्ट, द फर्स्ट मोस्ट कॉमन enzyme deficiency is G6PD, which I told you. This G6PD deficiency will cause the oxidative stress. आपकी बॉडी हाइपर ऑक्सीडेटिव स्टेट में चली जाएगी जिससे आपकी बॉडी में H2O2 will increase and this H2O2 will break down the cell membrane of the RBC and will eventually cause the hemolysis. Hence, hemolysis will occur in the G6PD deficiency. Okay, and it also occurs in the पायरुवेट काइनेज। सो अब बात करते हैं, सिर्फ एक सिमिलैरिटी हमें इसके अंदर मिली कि दोनों ही डेफिशिएंसीज में पायरुवेट काइनेज इज द सेकंड मोस्ट डेफिशिएंसी एंड G6PD इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी। दोनों में ही लेकिन हिमोलिसिस जरूर हो रहा है। कैसे? G6PD में डेफिशिएंसी हुई तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ आपकी बॉडी में, H2O2 बढ़ा जिससे हिमोलिसिस हुआ। पायरुवेट काइनेज में देखिए क्या होता है, पायरुवेट काइनेज के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हुई, इसका मतलब पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। अब याद कीजिए पायरुवेट काइनेज एंजाइम था कहां पर ग्लाइकोलिसिस में, सी ढूंढिए पायरुवेट काइनेज। दिस पायरुवेट काइनेज वाज द लास्ट एंजाइम टू बी यूज्ड जिसने कन्वर्ट किया था पेप यानी फॉस्फोएनाइल पायरुवेट को पायरुवेट में। दिस वाज द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेज जो ग्लाइकोलिसिस में यूज हुआ था, और अगर ये नहीं हुआ एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ग्लाइकोलिसिस विल नॉट बी अकर।
और अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हुआ तो एटीपी भी नहीं बनेगा। अगर एटीपी नहीं बना तो आरबीसी कैसे सर्वाइव करेंगे? वो आरबीसी जो स्टार्विंग कंडीशन में भी जिनको सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए, हमारी बॉडी स्टार्विंग कंडीशन में कीटोन बॉडी यूज कर लेती है, फैट यूज कर लेती है, अल्टीमेटली प्रोटीन भी यूज कर लेती है, मसल का भी ब्रेक डाउन कर लेती है अगर ग्लूकोज ना हो, अगर आप स्टार्विंग कंडीशन में आपको खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन आरबीसी एक ऐसा सेल है आपकी बॉडी में जिसको मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। ओके, सो आरबीसी विल नॉट सर्वाइव अगर आपकी बॉडी में एटीपी नहीं होगा और ग्लूकोज नहीं होगा। इसकी वजह से आपके सोडियम पोटेशियम पंप जो एटीपीएस पंप है वो काम नहीं करेंगे, वो डैमेज हो जाएंगे और आरबीसी की मेम्ब्रेन विल गेट रप्चर, विल अल्टीमेटली लीड टू हेमोलिसिस। तो पायरुवेट काइनेज और G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। G6PD इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन एंड पायरुवेट इज द सेकंड मोस्ट। दोनों में हेमोलिसिस होता है। हाइंस बॉडी G6PD में बनती है, पायरुवेट काइनेज में नहीं। पायरुवेट काइनेज इज द एंजाइम ऑफ EMP एंड दैट इज ऑफ द HMP। ओके, सो ये इस वीडियो के लिए एनारोबिक कंडीशंस, क्या यील्ड है ग्लाइकोलिसिस की, क्या डिफरेंस है और क्या लैक्टेट फॉर्मेशन और NADH का रेगुलेशन का रोल है, एंड लास्ट पॉइंट क्या पॉइंट्स हैं पायरुवेट काइनेज और G6PD के, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करे। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू द इंस्पायरिंग माइंड्स चैनल। और अगली वीडियो आ रही है मेरी शटल्स के ऊपर, कैसे ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।